تمہیں اس لیے دیا تمہیں تاکہ آپ کی آزمائش ہو، تاکہ تمہارا امتحان ہو، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ یہ ساری چیزیں پانے والا، حکومت پانے والا، جاہ جلال پانے والا، زندگی پانے والا، اچھا دبدبہ پانے والا، منصب پانے والا، کرسی پانے والا، اچھے اچھے مقامات اپنی زندگی میں عروج پہ آنے والا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ سب پانے کے بعد میں بھی اس اللہ کو بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے رب تو عطا کرنے والے رب کو بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں، اور دینے والے، عزت دینے والے اللہ کو بھی یاد کرتا ہے کہ بندہ نہیں کرتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی ہماری آزمائش اب آپ یہ اس لیے، اور یہ ساری چیزیں جو دی ہے یہ اس لیے دی ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ مائک ہے نا، اس مائک کی قدر نہیں ہوگی، کب نہیں ہوگی اب بتائیں، اور جب تک اس کی قدر ہے جب تک ہماری آواز کو آپ تک آواز پہنچا رہا ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے اور مائک میں کچھ ڈسٹرب پیدا ہو جائے تو جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں بھی پتا چلے گا کہ واقعی مائک کی قدر ہے، واقعی مائک کی قدر ہے، لائٹ کی قدر ہے۔ اندھیرا جب ہو جاتا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ روشنی کی قدر کتنی ہوتی ہے، تب پتا چلتا ہے۔ انسان کی صحت، آج انسان کے بازو میں طاقت، انسان کی اقتدار میں طاقت، انسان کے ذہن میں طاقت، انسان کی صحت، مگر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ جس سے انسان شیر کے پنجے کو مروڑ سکتا ہے، یہی انسان جب ایک گلاس یا پانی کا پیالہ خود لے کر پی نہیں سکتا ہے نا، تب پتا چلتا ہے کہ صحت ہوتی کیا ہے، تب تک قدر نہیں ہوتی۔ ہاسپٹلوں میں جو گھمایا جاتا ہے، ڈاکٹر لاعلاج ثابت کرتے ہیں، تب بتاتا ہے کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے، تب پتا چلتا ہے، تب پتا چلتا ہے صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جاہ جلال دیا، عزت دی، طاقت دی، شہرت دی، بزنس دیا، کاروبار دیا، حکومت دی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت اس کے تقاضے بھی رکھ دیے کہ یہ سب دینے والے کو بھی یاد کرتا کہ نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کو بھی یاد کرتا کہ نہیں کرتا ہے۔ جب بندوں جب یاد انسان نہیں کرتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، عبادت و ریاضت کرنا بھول جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر جگہ وہ انسان جھکتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے، مالک کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، وہ انسان چاہے دنیا کے کس کونے میں رہے مگر اس کی حکومت پوری دنیا پہ رہتی ہے۔ سودا اگر کربلا میں ہے پوری دنیا پہ نظر رہتی ہے، سودا اگر بریلی شریف میں ہے پوری دنیا پہ نظر رہتی ہے، سودا اجمیر میں ہے پوری دنیا پہ نظر رہتی ہے۔ اللہ کا بندہ عبادت کرتے کرتے، رب کو راضی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ وہ سوتا ہے تو نبی کی یاد میں، وہ روتا ہے تو نبی کی یاد میں، وہ کھاتا ہے تو نبی کی یاد میں، وہ پیتا ہے تو نبی کی یاد میں، وہ کام کرتا ہے تو نبی کی یاد میں۔ اس کی زندگی کے ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرتا ہے۔ وہ انسان سوچ لیتا ہے میں سوؤں تو نبی نبی، میں کھاؤں تو نبی نبی، میں پیوں تو نبی نبی، میں چلوں تو نبی نبی، میں سوؤں تو نبی نبی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس مقام پہ انسان جب پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، رب کا ولی بن جاتا ہے، رب کا دوست بن جاتا ہے۔ اب وہ دنیا پہ چلتا ہے، اگر راستے پہاڑ پہ چلتا ہے تو پہاڑ اس کے لیے نام ہو جایا کرتے ہیں، اگر وہ سمندر پہ قدم رکھتا ہے پانی اسے راستہ دے دیا کرتے ہیں، اگر انسان سمندر پہ جاتا ہے تو موجیں اس کا استقبال کرتی ہیں، دریاؤں کی طغیانی اس کا ویلکم سواگت کرتی ہے، دنیا کے تخت و تاج اس کی ٹھوکر میں پڑے رہتے ہیں، تعلیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سمٹ کر پہاڑ ان کی راہ ہے بسیرا۔ ولایت جب ولی بن جاتا ہے اللہ اس کے بادشاہ دے دیتا ہے، اسے بادشاہ دیتا ہے، رب اسے بادشاہ دیتا ہے۔ کیسی بادشاہ؟ یہ دنیا کی بادشاہ جب تک رہتی ہے، جب تک اقتدار پر رہتے ہیں لوگ، جب تک لوگ کرسی پر رہتے ہیں،
तब तक लोग सलाम करते हैं, जब कुर्सी से हट जाए ना लोग उसके चेहरे को पहचानने को इनकार कर देते हैं। मगर खुदा जाए मेरे वली कामिल पीराने पीर दस्तगीर की जिंदगी पर सुभान अल्लाह सदियां गुजर गई, आज भी लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर जाए 850 साल गुजर गए, 800 साल का समय गुजर गया, मगर कौन देता है तुमको छठी की दावत? कौन बुलाता है तुम्हें वहां? कौन बुलाने आता है? या अगर रिश्तेदार अगर दावत देता है तो नहीं जाते, बुलाए वो 1000 बार पंचायती होती है, लोग मनवाते हैं बात, फिर जाके इंसान जाता है। मगर अल्लाह के वली के दरबार पर कौन दावतें देने आता है? रोकने से भी कोई रुक सकता नहीं है, मगर इंसान चले जाए। क्यों? मैं लंबी बात नहीं बताऊंगा, इसलिए कि ये हदीस पाक का मफहूम है कि जब इंसान अल्लाह का वली हो जाता है ना, रब का दोस्त हो जाता है ना, तो अल्लाह रब्बुल ज़मीन व आसमान, अल्लाह फरमाता है आसमान वालों तुम मेरे बंदे से मोहब्बत करो, दुनिया वालों तुम मेरे बंदे से मोहब्बत करो। अब कोई रोकने से रुक नहीं सकता है। इनके दिलों पर, इनके दुनिया के दिलों पर जो है हुकूमत अल्लाह के वलियों की हुआ करती है। अब मेरा ख्वाजा गरीब लोग अल्लाह की इबादत करते करते इतना वली काबिल बन जाता है, इतना रब का दोस्त बन जाता है, इतना रब का कुर्ब हासिल कर देता है कि अगर अब मेरा ख्वाजा गरीब राज, अब अगर इब्राहिम बिन आदम अगर मछलियों को हुक्म देंगे कि सुई मेरी निकाल के लेके आओ, तो समुद्र से एक नहीं 1000 सोने की सुइयां मछलियां निकाल करके समुद्र के बाहर आ जाए। मेरा गरीब राज अगर आना सागर से हुक्म दे तो पूरा पानी सागर समझ करके मेरे गरीब नवाज के प्याले में समझ के आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? क्या बात है? आपने देखा होगा, गए होंगे आप अजमेर शरीफ, गए होंगे आप, जाएंगे आप देखेंगे आना सागर, आना सागर जिसके अंदर कश्तियां चल रही है। आप देखें कश्तियां चल रही है, लोग सैर करते हैं, घूमते हैं उसके अंदर, इतना बड़ा सागर। आपको जयपाल जोगी ने कहा सारी चीजें, कहा कि इसको जब सारी चीजों से जब वो आजिज आ गए तो कहा ये वली जो है ना, ये जो बंदा आया है ना, अब इस पे पानी बंद कर दो, जब प्यासा मरेगा अपने आप प्यास से मर करके ये लोग चले जाएंगे, बंद कर दो, पहरा लगा दो। तो बस ठीक है, यही तो ने किया है और यही कर रहा है, ठीक है, पानी पे पहरा लगा लिया। मगर अल्लाह के वली, आपने आना सागर तो सुना होगा, मगर मैं आज तुम्हें बता देता हूं 2 लफ्जों में आना सागर कहा क्यों। अल्लाह के वली ने अपने एक खादिम को भेजा और कहा कि इन बादशाहों से मुझे कोई लेना देना, तू तो सिर्फ पानी से ही जाकर के कह रहा है। तो सुभान अल्लाह बोले, एक में हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, क्या बोले कि तुम्हें झगड़ा करने की जरूरत नहीं, अभी दंगा करने की जरूरत नहीं, हमें किसी से इनसे उलझने की जरूरत नहीं, आप तो असल मुद्दे पे आए और प्याला लेके जाए। अब आना सागर है। अब ये इंसान की जहन में कहेंगे, आप कहेंगे यार इतना बड़ा पानी एक प्याले में कैसे आ गया, समझ में नहीं आता। हाँ, यही तो बात समझाना है कि समझ में ना आए उसे तो अल्लाह के वली की करामत कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आएगा तुम्हें, समझना बहुत मुश्किल है। जाकर के कहते पानी से कि पानी तुझे तो ख्वाजा बुला रहे हैं, बादशाह यहाँ उनकी है, मगर तुम्हें तो ख्वाजा बुला रहे हैं। ये गए और जाने के बाद कहा आए सागर आना, आए है सुभान अल्लाह। आना सागर है ना, तो सागर होता है, समंदर तो समंदर होता है। आना सागर नाम क्यों रखा? वजह सागर, मेरे ख्वाजा ने कहा कि पानी आना, ये आ गया, उसी दिन से नाम आना सागर हो गया है। आ गया सिमट करके प्याले में आ गया है। आज तो साल गुजर गए, आज दुनिया के लोगों के दिलों पर भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत है, इंसानों पर भी हुकूमत है, जिन्नात पर भी हुकूमत है, अपनों पर भी हुकूमत है, रावों पर भी हुकूमत है। अरे इसलिए कि ये दरो दीवार सारी जो चीजें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ताबे कर देता है। अल्लाह के वली में वो ताकत हुआ करती है, रब के वली में वो कुव्वत हुआ करती है। चाहे तो पानी को भी पानी समेट करके प्याले के अंदर लानी इकट्ठा कर दे और चाहे तो किसी को उठने भी न दे। पीर के महफिल में बैठे हैं, मैं तुम्हें बताऊं हुकूमत का किसे
करते हैं। मेरे पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में हजारों का मजमा हुआ करता था, लोग बैठा करते थे, मेरे गौस तकरीर किया करते थे, उनकी मजमे में हजारों लोग इकट्ठा हुआ करते थे। जब पीराने पीर जब आ जाते ना तब लोग खड़े हो जाया करते थे, उनका काबिल दीन ये मजमा होता था, एकदम उनके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हो जाया करते थे। अभी नूरुल्लाह शाह पीर मुर्शिद जब तशरीफ लेके आएंगे तो हम उनको स्वागत अदब का एहतराम करते हुए सारे लोग उनको वेलकम स्वागत करते हुए खड़े हो जाएंगे। ये पीराने पीर जब गौसे आजम जाए और लोग बैठे रहे, नहीं नहीं नहीं, गौसे आजम मजलिस में आते, मजमे के अंदर आते, सारे लोग खड़े हो जाया करते थे। मगर एक दिन इत्तेफाक ऐसा भी हुआ, गौसे आजम मजमे को चीरते हुए ऊपर पर तशरीफ लेके आए, मगर एक आदमी भी खड़ा ना हुआ, एक आदमी भी खड़ा ना हुआ, नहीं खड़ा हुआ। तब मुरीद ने आकर के कहा कि हुजूर बात समझ में नहीं आई, हर बार जब आते हैं तो लोग खड़े हो जाया करते हैं, मगर आज आप तशरीफ लेके आए और एक भी नहीं था। तो पीराने पीर ने कहा कि लोगों के दिलों पर भी हमारी हुकूमत है, हम चाहे तो उठने दे और चाहे तो न उठने दे, हम चाहे तो उठने दे, चाहे तो न उठने दे। इतना कहना था, सारे लोग खड़े हो गए। कहा ना उठने का मंजर देख लिया, अब उठने का मंजर भी देख लिया। ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वली है, ये रब के वली है। मैं अदना गुलाम हूँ शहीद, इस तरफ फख्र है नहीं, मैं अदना गुलाम हूँ शहीद दस्तगीर का, है आस्ताने पीर पे तकिया फकीर का, दुनिया के कारोबार से मुझे कोई गर्ज नहीं। अब कादरी चमन में है बिस्तर फकीर का, अब कादरी चमन में है बिस्तर फकीर का। आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा ना, ये औलियाए किराम है, ये बुजुर्गान दीन। हमारी तकरीर करने का मकसद ये है, ये मजमा, ये सारे आप लोग आए, ये है कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन पैदा करें। लोगों, आप औलियाए किराम की मजलिस में बैठ करके आप अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करें कि हमें भी कुछ करना है, हमें अल्लाह की इबादत करने, वरना मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारी दास्तां भी नहीं होगी, हमारी हिस्ट्री भी नहीं होगी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अरे पहले तो हिस्ट्री भी, आज तो हिस्ट्री भी नहीं लिखा जाएगा कि तुम दुनिया में थे भी क्या नहीं, वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए अल्लाह को याद करें, अल्लाह की बारगाह में सजदे करें, नमाजों की पाबंदी। हर जगह जाता हूं मैं ये बात कहता हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, मैं उलमाए किराम की दुआएं ले तो ये कहता हूं कि अगर कोई एक भी अगर हमारी टूटी फूटी बात पर अमल कर दे और नमाजी बन जाए तो हमारा यहाँ आना, मजलिस में आना, हमारा यहाँ तकरीर बोलना, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। खुदा के वास्ते आप नमाज पढ़ें, अल्लाह के वास्ते आप नमाज पढ़ें, वरना कल कयामत के दिन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामत सलातहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले कयामत के दिन बंदे का हिसाब नमाज से शुरू होगा। सारी चीजें, कितना कमाया, कितना खाया, कितना बिजनेस किया, कहां जिंदगी गुजारी, कहां झूठ बोला, कहां दगाबाजी की, कहां अपनी सारी मक्कारी इजारी की, सबका हिसाब देना पड़ेगा। मगर पहले नमाज का देना पड़ेगा। नमाज कितनी पढ़ी आपने? पहले नमाज, पहले नमाज, नमाज पढ़े, नमाज अल्लाह की बारगाह में सजदे करें, सजदे। मेरे रसूल ने फरमाया कुल्लु अब्द में युबासु मा अला मा मात अलैया, जो बंदा जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन उसी हाल में उठेगा। तो सजदा करेगा बंदा, वो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सजदा करता हुआ उठेगा। हमें सजदा तो करना नहीं है ना, हमें नमाज का मत बताओ। और भाई काम तकरीर करेंगे तो नमाज का मत कहो, इनको तो फिर भी जन्नत का फार्मूला दिखा दो कि जन्नत में कैसे जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, आप अल्लाह की इबादत करें, आप अल्लाह की बारगाह में थोड़ी देर बैठे, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए, मौला की बारगाह में पेशानी झुकाए, इबादत रियाजत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी कामयाबों का गान। एक बादशाह वक्त था बहुत बड़ा, जिन्हें अपनी हुकूमत पर नाज था, ताकत पर, बिजनेस पर, अपनी चौचलाल पर बड़ा फख्र था। उसने कहीं शॉर्टकट में कह रहा हो, वो कहीं घूमने के लिए बाहर निकला, और जब घूमने के लिए बाहर निकला ना तो जा रहा था तो कहा कि ये सवारी लेके आओ, तो कहा ये घोड़ा पसंद रहे, ये घोड़ा पसंद रहे। कुछ देर के बाद एक सवारी पसंद की, फिर कहा ये भी ड्रेस पसंद रहे, ये भी ड्रेस पसंद रहे, ये भी ड्रेस पसंद रहे। फिर एक जोड़ा तैयार करा, ये मुझे पसंद है, उस पे वो जोड़ा पहना, सवारी पे बैठा। बैठने के बाद में रवाना हुआ, बेफिक्र के
के साथ रवाना हुआ, बड़े जाओ जलाल के साथ में रवाना हुआ। सुनी मेरी बात को तवज्जो के साथ में आप सुने, इधर ध्यान रखिए, मैं तुम्हें बात कामयाबी कह रहा हूं, लेकिन याद रखें शैतान जब अच्छी बात सुनने को आएगी ना, तब शैतान आपके आपके दिलों में कानाफूसी करेगा कि इधर देख ले, थोड़ी देर इधर देख ले, ये बैठ जाएगा, उसके बाद वो आ जाएगा, उसके बाद तेरे खत्म और लंगर जाएगा खाना है। शैतान आपको बनाएगा, आप इधर उधर देख रहे हैं, ये सब शैतान देख रहा है कि ये सुन रहा है, ये सुधर जाएगा, इसलिए आपके ज़हन पीछे कौन का आगे कौन का, इधर उधर गर्दन घुमाई, उधर देखे आप, इसलिए कि ये सारी चाल शैतान की है। गर्दन घुमाते 60 साल हुआ, कुछ हिस्सा नहीं हुआ, तो आज थोड़ी देर आप गर्दन को सीधी रखें अल्लाह के वास्ते। मैं आपका अजीज हूं, आप मेरे अजीज हैं, हम आपको बात बता रहे हैं कि शैतान ऐसा कर सकता है, इसलिए आप सुने। वो गया, वो जाने के बाद वो सुने गया और रास्ते में जा रहा था, एक बूढ़ा सा इंसान आया और बूढ़े इंसान आने के बाद अस्सलाम वालेकुम का, तो सलाम किया ना, तो उसने जवाब नहीं दिया। आज ये हमारा हाल है ना, हम आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका हाल नहीं होगा, अल्लाह करे ऐसा मुसलमानों का हाल होगी ना, मगर आप तो बहुत अच्छे हैं। अब